transformation for our students at Symbiosis University of Applied Sciences. As we prepare to commence the convocation procession, I respectfully ask everyone to please stand and remain standing as the convocation procession proceeds. The procession has entered the auditorium led by Dr. Manish Kumar, the Controller of Examinations, who is carrying the ceremonial mace or the mandand. The procession comprises dignitaries from the University Governing Body, Board of Management, Academic Council, Registrar Brigadier Anamitra Samanta, Vice Chancellor Professor Dr. Vineet Kumar Nair, Honorable Pro-Chancellor Dr. Swati Majumdar, Chief Guest Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Dr. Mohan Yadav ji, Guest of Honor Cabinet Minister Water Resources of Madhya Pradesh, respected Shri Tulsiram Silawat ji. And special guest for today, Chairman MPP URC, Shri Bharat Sharan Singh, for today's convocation. I kindly request everyone to remain standing until the esteemed dignitaries have taken their seats on the dais. I also invite the dignitaries to please take their seats on the dais as we begin this special occasion. Thank you everyone for being so supportive and cooperative. Kindly take your seats and enjoy the ceremony. On the occasion of 6th Convocation Ceremony of Symbiosis University of Applied Sciences, we would like to take a few moments to welcome our distinguished dignitaries. The chief guest for today's convocation ceremony, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, the guest of honor, Cabinet Minister, Water Resources of Madhya Pradesh, Shri Tulsiram Silawat ji, special guest, Chairman MPP URC, Dr. Bharat Sharan Singh, Honorable Chancellor of the University, respected Dr. S.B. Majumdar sir, although not present physically here, but his blessings and guidance are always with us. He has delegated Pro-Chancellor Dr. Swati Majumdar to preside over the convocation on his behalf. Pro-Chancellor Dr. Swati Majumdar, Vice Chancellor Dr. Vineet Kumar Nair, Registrar Brigadier Anamitra Samanta, Controller of Examinations Dr. Manish Kumar, members of the Managing Committee of the sponsoring body, members of Governing Body, members of the Board of Management, members of Academic Council and Board of Studies, our valuable industry partners, distinguished invitees, members of the press and media. I sincerely welcome you all, especially the graduating students of the 6th Convocation and their parents who have gathered here today to witness this ceremony. I now invite Registrar Sir to take the proceedings further. May I request the Pro-Chancellor ma'am to kindly declare the convocation open. I declare the convocation open. Now, it is my privilege to introduce our respected Pro-Chancellor Dr. Swati ma'am, a stalwart and a bona fide leader in the field of higher education and skill development. Dr. Swati has played a pivotal role in shaping national and international policy development, serving on numerous government advisories. With a PhD in skill development, she has been instrumental in pioneering India's first skill-based university, a remarkable achievement that reflects her unwavering commitment to the education. So thank you, Madhulika. Sorry to interrupt you. I'm extremely honored and delighted to welcome all the dignitaries sitting on the dais on the occasion of the 6th Convocation Ceremony of Symbiosis University of Applied Sciences, Indore,
which is India's first skill development university. आज का ये समारोह हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में एक खास स्थान रखता है, क्योंकि हमारे बीच एक युवा प्रेरणादायक व्यक्तित्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित है। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगी, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। उनका शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा में बहुत योगदान सराहनीय रहा है। इस दीक्षांत समारोह में माननीय श्री मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। वो एक दूरदर्शी नेता है जिन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश की है। I am sure that our students will be greatly inspired with his motivational words. I thank you, Honorable Chief Minister, sir, for coming all the way to Symbiosis to give your blessings to all of us and our dear graduating students. उनके साथ ही माननीय मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट जी का भी मैं हार्दिक हृदय से स्वागत करती हूं। उनके राजनीतिक अनुभव और योगदान से राज्य को एक प्रमुख स्थान मिला है। I welcome you, sir. It is my profound honor to welcome our special guest, Dr. Bharat Charan Singh, the chairman of Madhya Pradesh Regulatory Commission, who has always been a pillar of support to all of us at Symbiosis. I also take it my privilege to welcome our respected members of the governing body, Board of Management, Board of Studies, and the members of our academic council, Dr. Ishwar Singh Chauhan, Mr. Satyendra Sharma, Mr. Dinesh Kumar Shukla, Mr. Ullas Bochre, Major Sonali Kadam, and Mr. Vikas Khatri, who are here present today. I'm also honored to welcome the Collector and Commissioner of Indore, along with the members of Legislative Assembly and other dignitaries who are present here today. I also welcome the members of the press and media who have come to support us. Most importantly, I welcome our industry partners who are continuously mentoring our students for this Skill University initiative of Symbiosis. Dr. Vineet Nair, our Vice Chancellor, Brigadier Samantha, our Registrar, and the Controller of Examination, Dr. Manish. Sir, I'm extremely proud to also give my welcome to our Honorable Chancellor, Padma Bhushan Dr. S.B. Majumdar, sir, who unfortunately could not join in person, but who is watching this ceremony online. मुझे बताने में खुशी हो रही है। Next we have Parv Dubey from BBA Digital Media and Marketing. As Parv is doing his masters from Ireland, I would request his mother to please come forward. No, she's not there. Okay. Mr. Vidit Jain from BBA BFSI. Mr. Sarthak Patil from BCom Honors.
Thank you so much, sir, for doing the honors. Heartiest congratulations to all the awardees. सम्मानीय मुख्य अतिथि और हमारे प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का इस भव्य अवसर पर हार्दिक स्वागत करके मुझे अपार हर्ष हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव एक दूरदर्शी नेता हैं जिन्होंने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक विकास की दिशा में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। उनका सपना है कि मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख निवेश स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया जाए। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने योजनाएं न केवल प्रगतिशील हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली भी हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धियां भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। उन्होंने विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्राप्त की है जिसमें लॉ, मैनेजमेंट एवं डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियां हैं। 2020 से 2023 तक डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए शिक्षा में सुधार और नवाचार के माध्यम से युवा सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया है। उसके अलावा डॉक्टर यादव एक शिक्षाविद, लेखक और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली पहल की है। हमारे पहले कौशल विद्यालय में आपका स्वागत करना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और हमें अपने प्रेरक विचारों से मार्गदर्शित करें। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में मैं आज मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, कुलगुरु डॉक्टर विनीत नायर जी, हमारे बीच मजूमदार परिवार का बड़ा योगदान है सिम्बायोसिस से दुनिया को परिचय कराने का, और खासकर इनका वजन और तब बढ़ जाता जब डॉक्टर स्वाति जी अपनी यूएस की बनी बनाई बड़ी नौकरी छोड़कर के मध्य प्रदेश और देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा रहे। जोरदार अभिनंदन करें हम अपनी बहन स्वाति मजूमदार जी का। हमारे विनियामक आयोग के डॉक्टर भगवत शरण सिंह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लिए वर्तमान के दौर में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लेकर के आपका सक्रिय योगदान भी है और अपनी मौजूदगी से आप कई सारे नए नवाचार करते हुए योग्य प्रकार से इस काम को बढ़ा रहे हैं। वैसे थोड़े समय की कमी है, समूचा मंच आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी नमस्कार करता हूं। हमारे लिए किसी भी विश्वविद्यालय के, खास करके जब वो विश्वविद्यालय तकनीकी रूप से दक्षता दिलाने वाला हो, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। उसका एक विशेष महत्व भी होता है और उसमें भी अगर सिम्बायोसिस हो तो और आनंद ही है, कुछ और है, उसका कुछ अपने आप में गौरव और गर्व दोनों होता है। हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि ये हमारे मध्य प्रदेश का कैंपस है। मैं आपको बधाई देता हूं। आपके हिसाब से सभी को आनंद के साथ, ये भी बड़ी कठिन बात रहती है, तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों की भाषण दे के ताली की अपेक्षा करो, बड़ा मुश्किल जाता है। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, ये बड़ा कठिन जाता है, लेकिन हमारी मुश्किल दूसरी होती है। आज के इस दौर में तकनीकी दक्षता के उदाहरण भी भरपूर, ऐसे लग रहा है कि ये 10-20 साल, ऐसा लगता है पुराने 100 साल पे भारी पड़ेंगे।
कदम कदम पर दीक्षांत की आवश्यकता, पहले तो अर्निंग की बात करने के लिए हम किसी महाविद्यालय में आते थे, लेकिन अर्निंग के पहले लर्निंग, और लर्निंग में आपके जैसे कैंपस के जो आनंद है वो हम सबको याद दिलाते हैं कि भाई पेजर भी कितना भारी पड़ता है। ये हिजबुल्लाह के लोग बताते हैं कि पेजर तकनीकी रूप से दक्षता का इससे बड़ा कोई उदाहरण होगा क्या? कहाँ उनने कब अपने मोबाइल छुड़वाए और किसकी दुनिया। ये इजराइल जैसा देश ने तकनीकी दक्षता का जो समय के साथ उदाहरण प्रस्तुत किया है, जोरदार होनहार इजराइल जैसे छोटे से देश के हम तो आज अब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे किसी एक के लिए अभिनंदन करने में। लेकिन ये जो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के मैं दीक्षांत समारोह में उस भूमिका को जरूर लाना चाहूंगा, जिनके माध्यम से एक कितनी कठिन चुनौती आई थी कोविड की, लेकिन उस कोविड की कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आपकी जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर समय सीमा में न केवल निदान निकाला गया, बल्कि ये टीका तो इजाद किया ही किया है। देश और दुनिया के सामने चुनौती थी, ऐसे में भारत ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की, और उससे बढ़कर के हिसाब किताब लगाने का कि 6 महीने में टीका लगेगा, करोड़ों करोड़ों लोगों को वो अपने कौन सा क्या तरीका लगाया होगा, वो भी भारत जैसे देश में। मैं आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। आज जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर अपनी ये जो नई उपलब्धियां बताते हैं, तो लोगों का आज भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है, उसके आप सब हकदारों में आप सबको बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। और इसीलिए वो एक शब्द वापरते मैं उसको दोहराना चाहूंगा, यही समय है, सही समय है। ये जो समय हमारा है, ये तकनीकी दक्षता का ही समय है। इसकी कीमत भी हमको मिलेगी, लेकिन कीमत से ज्यादा यश मिलने वाला है, और यश भारत के माध्यम से मिल रहा है। मुझे जैसे बताया गया, मैं तो सिम्बायोसिस में आने में थोड़ा सा आज कठिनाई महसूस कर रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम लगे थे, लेकिन बाकी को कट करके हमने कहा ये इस कैंपस में आना, यानी समय का सदुपयोग करना, मुझे इस बात का आनंद है। आपके बीच पा करके अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जो आपको गौरव मिला है, गर्व मिला है, ये जो आनंद का क्षण है, इसका एहसास एक दिन का 2 दिन का नहीं है, ये लंबे समय तक का है। और जब उसका महत्व तो तब होगा जब कागज की डिग्री या कॉलेज से डिग्री यूनिवर्सिटी के आधार पर आपको दी गई, ये हमारा शैक्षणिक काल वर्तमान की किताबी ज्ञान का पूरा हुआ। लेकिन ये जो वास्तव में शिक्षा से दीक्षा, दीक्षा मतलब दीक्षांत, और दीक्षांत यानी हम अपना स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन के बाद मनन, और मनन के ऊपर चिंतन है। जब तक हम मनन और चिंतन की दिशा में नहीं जाते तो शिक्षण बेकार है। हमारे लिए परमात्मा की दया से अतीत के हजारों उदाहरण भरे पड़े, जब हमारे लिए कहने के लिए तो शिक्षण तो हर पूरा दुनिया के 200 से ज्यादा देश दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा की महत्ता किस देश में कहाँ फलीभूत हो रही है। मुझे इस बात का आनंद है, आज बदलते दौर में कितने प्रकार से भारत में काम हो रहे हैं, वो कितने प्रकार से सोचा जा रहा है, इसमें आपकी महत्ता है। हम सब जानते कि हम अपने इस एक अगर 2 उदाहरण अगर आप सामने रखोगे तो याद आएगा, इजराइल की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से भी कम है, और इजराइल के आसपास के देशों की जो जिनसे लड़ाई चल रही है, उनकी संख्या अगर देखो, उनकी आबादी देखो तो ध्यान में आएगा। अकेले ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, 4.5 करोड़ से ज्यादा इराक की है,
ऐसे जितने अरब के देशों की सबसे दुश्मनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कमोबेश इतने सारे देशों के बीच, और आज से नहीं, इजराइल अपनी लगभग 50 के दशक में वो आजाद हुआ है, तब से लेके आज तक वो अगर सारी चुनौतियों पे पार पाता है तो अपनी तकनीकी दक्षता के बलबूते पे पाता है। न तो वो अपने दुश्मन को माफ करता है, न अपने दुश्मन को भूलता है। ये तकनीकी दक्षता के बलबूते पर भी कोई कल्पना करेगा कि वो अपने दुश्मन को अगर वो ईरान के राष्ट्रपति के भवन के अंदर जाके मार दे तो आधे तो 90% ईरान वालों को भरोसा नहीं होता कि बाहर वाला मार गया कि अंदर वाला मार गया। मार कैसे सकता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने प्राण ले ली हो किसी की। सुरक्षा व्यवस्था, उनकी सारे सिस्टम और सदियों से दुश्मनी है, लेकिन ये तकनीकी दक्षता का ही परिणाम है। ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण। अब उदाहरण के लिए आप सबके बीच में 2-4 चीजें बोलूंगा, आपको ध्यान में आएगा। हम में से कई किसान परिवार के लोग बैठे। अभी अगर मैं सोयाबीन का आंकड़ा ले रहा था कि प्रति बीघा सोयाबीन हमारे मालवा में, ऐसा मानते बड़े पैमाने पे, ये पटेल साहब बैठे हैं। पटेल साहब, 1 बीघा में कितना सोयाबीन होता है? 6 कुंटल। थोड़ा ज्यादा बोल दिया। एवरेज क्या आता है संजय भैया? 4। और इजराइल 1 बीघा में कितना लेता है? 30 कुंटल। अब अंदाज लगा लो। और वहां की बारिश और हमारी बारिश में कितना अंतर है? हमारे यहाँ की बारिश लगभग 30 इंच से तो एवरेज ऊपर ही होती कि नहीं होती? 32, 34, 40 तक चली जाती। लेकिन जिसके पास 7-8 इंच से ज्यादा पानी नहीं गिरता, अपना अंदाज लगा लो। एक गाय माता की दूध की कल्पना करो तो हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी गाय का दूध कितना आएगा? कितना आता नीचे? राजेश भैया है ना? और आप 30 लीटर निकाल लो एक टाइम का, 30 दूसरे पे जाओ। हमारे यहाँ दुनिया में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कौन सी दुनिया में हम रहे। और ये हम अपनी क्षमता योग्यता से बात करें, केवल आबादी के आंकड़े से बात करोगे 1 करोड़, और हमारे देश की कितनी आबादी है? कितनी है बताओ? 145 से लेके 42, जितनी भी है। तो ये जो वर्तमान के दौर में 1 करोड़ इतने पे भारी है, तो हमारी स्थिति क्या होना चाहिए? लेकिन मैं एक लड़ने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन क्षमता योग्यता के बलबूते पर देश का सकारात्मक सोच के लिए तो बोल ही रहा हूं। और ये किससे अपेक्षा है? ये आप ही से अपेक्षा है। ये जो वर्तमान के समय में तकनीकी रूप से दक्ष होते हुए, और जो मैं आपके कोर्स देख रहा था, वाकई में कोर्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उससे बड़ी बात है, हमारे यहाँ मेरिट की कभी कमी नहीं रही। मेरिट में हमेशा इस देश के अंदर मेरिट वालों का तो अलग प्रकार का स्थान है, लेकिन मेरिट से बढ़कर के भी एक बात है, हमारे यहाँ मॉरलिटी ज्यादा बड़ी है, हमारे जीवन मूल्यों का ज्यादा महत्व है। कौरव पांडवों में दोनों एक ही द्रोणाचार्य के विश्वविद्यालय से निकले विद्यार्थी थे, कहीं दूसरे नहीं थे। एक जैसे ही राज परिवार के थे, और एक जैसे में संख्यात्मक भारी तो कौरव ही थे, लेकिन दोनों में अंतर कितना हुआ। और बात का जीवन का परिणाम क्या रहा है कि जहां जीवन मूल्यों की बात आती तो पांडवों को हीरो की तरह देखते हैं और विलियन अपने आप कौरव बन जाते हैं। कर्ण का और अर्जुन का, दोनों का उदाहरण अगर देखोगे तो कर्ण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं है, उसकी अपनी सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में, लेकिन केवल अपना मन और जिद और पीछे का वो छिपा हुआ प्रतिशोध का भाव वो योग्यता को भी नीचा कर देता है। और वो परिणाम एक बार नहीं, और उसके सामने हमने सबने देखा है। ऐसे उदाहरण एक नहीं, कई सारे उदाहरण हमारे हर काल हर युग में। राम रावण के समय में क्या हुआ है, राम जी और रावण के समय में भी वही स्थिति है। रावण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं,
और तो और उसके तो कई मामले हैं जो आज भी उल्लेखनीय है। रावण के कोई अकेला धनी हो सकता है ऐसा नहीं, मेरे अपनी लंका का हर व्यक्ति का घर सोने का होना चाहिए। अभी तो कितना घोर आश्चर्य की बात, धन संपदा वैभव, उसका अपना परिवार की निष्ठा भी ऐसे कि पूरा परिवार कुर्बान हो गया, ये भी भाग्य की बात। कोई खानदान में और मान के चलो कि ऐसा कोई लोग तो कहते हैं, जानने वाले जानते हैं कि 10 सुख होते हैं मनुष्य के जीवन में। जिसका पहला सुख निरोगी काया से लगा करके उसकी अपनी सारे सुखों की गणना करो, दुनिया में आज तक जितने लोग हुए या जितने होने वाले, ऐसे में 10 के 10 सुख मिलने में अगर किसी को मिले तो वो एकमात्र रावण है, उसके अलावा किसी को 10 सुख नहीं मिले। लेकिन जो दूसरी कमजोर पक्ष था वो आपके सबके सामने बताया। तो दीक्षा और शिक्षा में हमको इतना ही देखना है, शिक्षा सबको मिलती, लेकिन शिक्षा के पीछे दीक्षा क्या कह रही है, और दीक्षा के आदर्श उदाहरण भी हमारे यहाँ है, हमारी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए सारे मित्रों को जिनने आज अपनी क्षमता योग्यता से इस टेक्नोलॉजी के युग में टैलेंट के बलबूते पर सिम्बायोसिस में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, आज के इस विश्वविद्यालय के भी 6ठे दीक्षांत समारोह की मैं बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमको अपने परिवार, देश, समाज सबकी उपयोगिता इसको विश्वास करते हुए देखना पड़ेगा। जो इजराइल का उदाहरण हम सब सामने देख रहे हैं, इजराइल ऐसा कर पा रहा तो क्यों कर पा रहा है, हमको उसका अतीत का थोड़ा सा उदाहरण हमारे सबके भी काम में आएगा। इजराइल की खुद की आबादी भले 1 करोड़ से कम है, लेकिन इजराइल के लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन के सामने जो 90 लाख के आसपास लोग मरे, उनकी मरने की मौत का दृश्य अगर हम जर्मन में जाके देखेंगे कि जिनको मरना है आज उनको अपना गड्ढा खुद खुदवा रहे हैं, और एक गड्ढे के नीचे जिनको कल मरना है तो 2 बगैर खोदे ही साथ में सो रहे हैं कि हम पे डाल दो मिट्टी। इनमें 30-30 हजार लोगों को गैस से मारना, क्योंकि गोली भी महंगी पड़ रही थी मरने के लिए। ये जो मौत की कीमत जिनने चुकाई, उसी में से मार्ग निकलता जीवन का। आज के इस अवसर पर ऐसे इतिहास के अतीत की घटनाओं से हमारे देश की अच्छाई को भी याद रखे, सच्चाई को भी याद रखे, और भूले नहीं हमारे इस देश की संपन्नता को, व्यवस्थाओं को। लेकिन बगल का ये हमारा एक बिल्कुल जुड़ा हुआ देश, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ईरान जैसा देश जो हमारे अपने क्या हुआ, पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहे कि वो तो अपना सियासी कटापिटा है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। आज नहीं तो कल उसकी वापस क्या होगा हम सब निपट लेंगे। लेकिन बगल का ईरान, नादिर शाह कहां से आया था, भूलो मत, ये बगल के ईरान से आया था। हमारी कितनी सुव्यवस्था कर ले, कितनी धन संपदा वैभव बना ले, कितनी सारी व्यवस्था खड़ी कर ले, लेकिन अगर हम आप सब प्रकार का विचार करते हुए अपने आप को परिपूर्ण नहीं करेंगे तो अतीत के घटनाक्रम बहुत खराब है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी क्षमता के लिए जगा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आपके प्रेरक और मार्गदर्शक शब्दों के लिए सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। As the convocation ceremony has come to an end, I request Registrar to take the proceedings forward. May I request the Pro Chancellor ma'am to kindly declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Thank you so much, ma'am. Now, let us all rise for the national anthem. May I request everyone to please stand for the national anthem.